Catenation, it is the self-linking property of atoms of element. Catenation is the bonding of atom of same element into a series called chain. This property is useful in formation of a long chain of carbon called organic compound, and these organic compound are used in preparation of various living things. The covalent bond formed between these carbon atom are very strong, that cannot be break easily, because due to the small size of carbon atom, the shared pair electron of carbon atoms are strongly held together, and this is known as the covalent bond. So here we can explain it. Catenation is the bonding of the same element into a series called chain. Catenation परिभाषित किया जा सकता है कि यह एक एटम की वह प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण एक एटम दूसरे एटम से जुड़ता है और वो भी सेम एलिमेंट का रहता है और जुड़कर एक लंबा चेन बनाता है, जैसे कार्बन के केस में होता है। कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो आपस में कार्बन के कार्बन एटम जुड़ जाते हैं और एक लंबा चेन बनाते हैं। इस लंबा चेन बनाने का फ़ायदा यह होता है कि बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स इसके द्वारा बनते हैं और इन मॉलिक्यूल को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड से जीवों का निर्माण होता है। इतने बड़े बड़े जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट पौधे और जानवरों में पाए जाते हैं। हमारा शरीर जो कार्बन का बना होता है उसमें इन कार्बन चेन का बहुत महत्व है। कार्बन और कार्बन के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, आसानी से उसे तोड़ा नहीं जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि कार्बन एटम छोटा होने के कारण दो कार्बन के बीच में एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, साझेदारी होती है। वो दोनों ही कार्बन के द्वारा बहुत ही मजबूती से पकड़ में रखे जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के द्वारा। इस बॉन्ड को ही जो है कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है, जो बहुत ही स्ट्रांग होता है। Occurrence of carbon means where carbon are found in our nature. Carbon are found in free and in combined state. In free state, it doesn't mean that like inert gases, carbon elements are found individually. In free state, it means the compound are found of only carbon. For example, diamond, that is the only hardest material known on the earth, is made up of carbon. Graphite, soft material of carbon that are used in pencil, and diamond we know used in as a ornament or cutting tool for glasses. Next, Buckminster fullerene. These three are carbon forms which are found in free state. Buckminster fullerene is hexagonal form carbon of carbon 60 that are in the shape of football or saucer shape, that are used in anti-aging in cosmetic, also used as antiviral and have the antioxidant property. In combined state, carbon are found in first as a carbon dioxide in our atmosphere 0.03%, in combined state in the earth crust in the form of limestone calcium carbonate, marble calcium carbonate, chalk calcium carbonate. Next, it is found as the fuel that are used to cook food and run the vehicles or machines or industries. In fossil fuels, they are like petroleum, coal, natural gases. Coal are different types, among which anthracite is the most useful and that have most energetic coal,
and best type of coal is anthracite. So bituminous coal have chemical formula C137H97O9NS. Anthracite coal have the formula 297H90O4NS. कार्बन हमारे वातावरण में दो प्रकार में पाए जाते हैं, एक मुक्त अवस्था में, दूसरा कंबाइंड, दूसरे तत्वों के साथ मिलकर बने हुए होते हैं। मुक्त अवस्था में कार्बन जो पाए जाते हैं उनका मतलब ये नहीं जैसे कि अक्रिय गैसेस हैं कि सिर्फ एक ही एलिमेंट रहते हैं। कार्बन जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं वो आपस में बंध बनाकर एक चेन बनाते हैं, और उसके उदाहरण है जैसे डायमंड। हीरा कार्बन का बना होता है, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे सख्त मटेरियल है, पदार्थ है, और यह हम ऑर्नामेंट्स यानी इसको जो है प्रयोग किया जाता है, अंगूठी में प्रयोग करते हैं, और इसका प्रयोग शीशे को काटने में भी किया जाता है। दूसरा कार्बन जो मुक्त अवस्था में मिलता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो पेंसिल की लीड होती है वो ग्रेफाइट से बनता है। बैटरी में कार्बन रॉड होता है वो ग्रेफाइट से बनता है। ये विद्युत के सुचालक हैं। ये नॉन कार्बन होते हुए भी विद्युत के सुचालक होते हैं, ग्रेफाइट। और कार्बन जो है थर्ड फॉर्म जो फ्री फॉर्म में होता है वो बकमिंस्टर फुलरीन। ये हेक्सागोनल शेप के कार्बन के चेन रहते हैं, क्लोज चेन रहते हैं, और ऐसे 60 का ये बना हुआ रहता है, मतलब टोटल 60 कार्बन का। और ये फुटबॉल के शेप का ये केमिकल कंपाउंड है बकमिंस्टर फुलरीन। ये कॉस्मेटिक में प्रयोग किया जाता है एंटी एजिंग, मतलब बुढ़ापे को थोड़ा रोकने के लिए उसको थोड़ा लेट में होने देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट की तरह यह काम करता है, एंटी वायरल की तरह भी जो है इसको प्रयोग किया जाता है। बंध अवस्था में जो कार्बन मिलते हैं वो जैसे कि हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है, वातावरण में ये 0.03% है। उसके बाद यह धरती के अर्थ क्रस्ट में पत्थर के रूप में मिलते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का बना ही हुआ है मार्बल, चॉक, जो लाइमस्टोन, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हैं। मार्बल जो हम लोग घर में प्रयोग करते हैं फर्श पे लगाने के लिए, चॉक से लिखने के लिए या फिर पुताई के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और लाइमस्टोन को ही जला के चूल्हा बनाया जाता है और उस चूने को जो है लगाकर घरों को चमकाया जाता है। दूसरा जो बंध अवस्था में मिलते हैं फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल ईंधन की तरह कहते हैं, जीवाश्म होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं खाना पकाने में, किसी उद्योग को चलाने में, बिजली पैदा करने में, इन सभी चीज़ों में इन फॉसिल फ्यूल का, जीवाश्म का प्रयोग करते हैं। उदाहरण है इसमें कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। कोयले में अगर देखें तो जो बिटुमिनस कोल है उसका केमिकल फार्मूला है C137H97O9NS। और एंथ्रासाइट कोयला जिसका फार्मूला है 297H90O4NS। तो ये सब जो है कार्बन के रूप में है जो मिलते हैं हमें। कार्बन इन कंबाइंड फॉर्म in fossil fuels, petroleum is the mixture of pentane to octane that are refined into gasoline. From nonane to hexadecane are found in diesel, kerosene and jet fuel. Natural gas is the mixture of methane. Combined form of carbon are also found in carbohydrate, fats and protein. They are also found in wool, wood and cotton fibers. Combined form में जो कार्बन हमें मिलते हैं उसके उदाहरणों में से फ्यूल में है पेट्रोल पेंटेन से लेके नोनेन तक के जितने कार्बन हैं
हाइड्रोकार्बन्स हैं वो उसमें पाए जाते हैं। उसको हम गैसोलीन कहते हैं, जो पेट्रोल से चलने वाले जितने भी व्हीकल्स हैं उसमें प्रयोग किए जाते हैं। नोनियन से हेक्साडेकेन्स तक, मतलब कार्बन चेन जिनकी संख्या 9 से 16 तक है, वो डीजल में, कैरोसिन में, जेट फ्यूल में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन हैं जिनमें ये पाए जाते हैं। नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस जो मिलता है जिससे हम ईंधन की तरह प्रयोग करते हैं, सीएनजी जिसे कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्रयोग की जाती हैं। ऐसे वाहनों को चलाने के लिए जिसमें गैस प्रयोग की जाती है वो गैस मीथेन गैस होती है, CH4। कंबाइंड फॉर्म में कार्बन हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में मिलते हैं, फैट्स और प्रोटीन, जिससे यह मनुष्य यूँ कह लें कि ऑर्गेनिज्म का शरीर बना हुआ है। कंबाइंड फॉर्म में कार्बन वुड, लकड़ी में, वुल, ऊन में, और फाइबर्स जो होते हैं ये इसमें, जैसे कि कॉटन, इसमें भी पाए जाते हैं। इस तरह से देखें कि कार्बन इतनी संख्याओं में पाए जाते हैं, इतनी जगह पे ये प्रयोग होते हैं कंबाइंड फॉर्म में। ये सब कार्बन के उदाहरण हैं जो हमें फ्री और कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। Allotropes of carbon. Allotropes. Allotropes may be defined as an element exists in various physical form called allotropes. The carbon element have three different physical forms known as allotropes. Example: diamond, graphite, and Buckminster fullerene. Diamond. Diamond is colorless, transparent, and have extraordinary brilliance. Diamond do not conduct electricity. Diamond, when burned in presence of pure oxygen at 690 to 840 degrees centigrade, it burns to form carbon dioxide, leaving behind no ashes. एलोट्रॉप्स के बारे में अगर देखें तो इसको परिभाषित किया जा सकता है कि तत्व के अलग अलग भौतिक रूप जिसमें वह पाए जाते हैं, उन्हें हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। कार्बन 3 भौतिकी रूप में पाया जाता है जिनको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। वह है डायमंड, हीरा, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन। अगर डायमंड के बारे में पढ़ें तो डायमंड एक कलरलेस, कोई रंग नहीं, रंगहीन, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, बहुत ही चमकने वाला पदार्थ होता है। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। डायमंड में बिजली नहीं दौड़ सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि किसी भी तत्व को बिजली को प्रवाहित करने के लिए उसमें मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन पाए जाने चाहिए। ऐसा डायमंड में नहीं है, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। डायमंड को जब भी प्योर ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में 690 से लेके 840 डिग्री तापमान तक गर्म किया जाता है तो यह हल्के नीले कलर के फ्लेम में जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जलने के बाद इसके बाद कोई भी अवशेष नहीं बचते हैं। अगर डायमंड इम्प्योर है तो उसमें राख बचते हैं, नहीं तो कुछ नहीं बचता है। डायमंड पूरी तरह से जल जाता है।
डायमंड इज ऑल्सो नोन एज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला हीरा सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ है पूरी पृथ्वी पे। तभी एक ग्लास को काटने के लिए हम लोहे का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि हीरे का प्रयोग करते हैं। एक लोहे से अगर ग्लास को काटा जाए तो उस पर कुछ नहीं होगा, जबकि एक हीरे से काटा जाए तो उस पर एक खरोंच आएगी और उस खरोंच से आसानी से ग्लास को दो भागों में जिस हिसाब से हम चाहते हैं उसे काट सकते हैं। ग्रेफाइट is an allotrope of carbon, is grayish black and opaque substance. It is slippery to touch, conduct electricity when burned in the presence of air, that is oxygen, at 400 degrees centigrade, produces carbon dioxide. ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रॉप है। ये स्लिपरी टू टच, छूने में जो है ये स्लिपरी होता है। कलर इसका ब्लैक ग्रेइश ओपेक अपारदर्शी होता है। ग्रेफाइट को जब जलाया जाता है तो लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल के लेड बनाने में प्रयोग आते हैं या फिर बैटरी का कार्बन रॉड बनाने में काम आता है, ड्राई बैटरी के।